کہ جس بندے کو سلیب دی جاتی تھی اس کو ننگا کر دیا جاتا تھا، الف ننگا، بالکل بے لباس کر کے اس کو سلیب پر لٹکایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی کو یوں لٹکا دیا گیا ننگا کر کے پوری دنیا کے سامنے، مکھیاں ان پر بن بنا رہی تھی اور اللہ کا سچا نبی برہنہ بغیر لباس کے لٹکا ہوا تھا. انہوں نے کہا وہی مسلمز بلیو کہ گاڈ المائٹی، اللہ المائٹی نے ان کو سلیب کے ننگ پن سے، نیکڈنیس آف دا کراس اور اگنوبل ڈیتھ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ان کو. انہوں نے صاف اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ جو کروسیفکشن کا صفحہ آپ کے سامنے فاروق بھائی نے کہا، یہاں بھی انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. جا بجا انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سلیب کے ننگ پن سے محفوظ رکھا ہے اور سلیب کی اگنوبل ڈیتھ سے بھی محفوظ رکھا ہے، کیونکہ سلیب پر جو لوگ چڑھائے جاتے تھے ان کے لیے یہ ایک رسوائی کا باعث ہوتی تھی کہ ننگا کر کے چڑھا دیتے تھے اور لٹکا دیتے تھے 3-4 روز تک، اور وہی اس کی موت ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے اس رسوائی سے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی نزول مسیح کا بھی عقیدہ بیان کیا کہ اب وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نازل ہوں گے ٹو جسٹ یو، آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے وہ آئیں گے. ہم مسلمانوں کے پاس تو کامل اکمل شریعت ہے نا، جو قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. ہمارے پاس تو کامل اکمل شریعت ہے. ہماری شریعت کا عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کچھ نہیں سوارنا. ٹو جسٹ یو، آپ کو جسٹ کرنے کے لیے، آپ کو صحیح کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. یہ وہاں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اپنا عقیدہ صاف بیان کیا. تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو بہتان ان پر لگا ہے. مسلمانوں جاگو اور ان مرزائیوں کو مجبور کرو، اخلاقی طور پر میں کہہ رہا ہوں، غیر قانونی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اخلاقی طور پر ان کو مجبور کرو کہ یہ معافی مانگے یا تباہ نہ کریں. جی شکریہ. جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ، بڑی زبردست گفتگو ہو گئی. لیں جی دوستو، اب کال کا لنک پبلک ہے، نیچے دیا جا چکا ہے. اب جس نے آنا ہے، جو بات کرنی، ہماری گفتگو ایک مکمل پیک ہو گئی پیچھے. وہ اس لیے کہ آپ تو لائیو بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو تو کوئی کسی نے ابھی جوائن کیا تو اس کے لیے وہ پہلا ہی منٹ ہے. جو بیچارہ ریکارڈنگ سنے گا اس کے لیے تو وہ پہلا نہیں ہے نا. وہ 148 منٹ پیچھے سے سن کے آ رہا ہے اور بیچ میں کبھی کوئی ہے تو کبھی کچھ چل رہا ہے، تو اس کو پریشانی ہوتی ہے. میں کامنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ نا موضوع کا ربط ٹوٹ گیا. اس لیے گزارش یہ کی جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک تمناؤں کا نشانہ میں بنتا ہوں پھر، کہ جب میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں بھی تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو، تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں پھر کہ بات ایک بندہ کر رہا ہے، انہوں وچوں پھاڑ لینا ہے، بھائی تو رک جا میں دسنا تینوں. تو جب پوچھا جاتا ہے بھائی اب موقع ہے دیکھنا، اب دیکھنا کیا ہوگا. اب کال کا موقع ہے. اب آہستہ 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 جناب اٹھ کے، وہ جیسے محفل چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے آواز آتی ہے نا بھی روٹی کھل گئی ہے، تو ہولی ہولی نکل جائیں گے، پھر کوئی نہیں بولے گا. آؤ جی اب تشریف لے ہیں، جس نے آنا ہے جناب. جو بات بہت زیادہ ضروری تھی نا وہ کر لیں. اور ریپیٹ کہیں سے تو میری آواز ہو رہی ہے. اچھا جی، لو جی یہ ایکشن صاحب دوبارہ آئے ہیں جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر، میرا نام مسعود ہے، اور میں آپ نے پہلے میری بات ہی مطلب کاٹ دی تھی، پھر آپ نے ای میل بھیجا، وہ بھی سڈنلی چلا گیا. اینی وے، تو میرا سر یہ میں نے ابھی جو اتنی لمبی وضاحت دی ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ دی ہے. نہیں سر، بڑی سن مہربانی. لیا اسی وجہ سے میں پھر آن لائن دوبارہ آ گیا ہوں، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا اچھا تھا. سر میں احمدی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک بڑا لمبا عرصے سے میں جماعت کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہوں. یہ کچھ شادیاں کرنے اور کروانے اور ڈیورسز کا کچھ ایشو ہے. کچھ جماعت میں جو سارا جو پروسیس چلتا ہے یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور غیر شرعی طریقہ کار، غیر اخلاقی طریقہ کار کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے میں کہہ رہا تھا کچھ کہ ان چیزوں کا میں کچھ بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو جی سر ضرور، آپ کو موقع ہے، آپ بالکل بتائیں. اچھا ایک چیز، کیا نام بتایا آپ نے پیارے؟ مسعود. جی مسعود احمد. مسعود صاحب، اگر کوئی احمدی آتا ہے اور وہ اعتراض لگا دیتا ہے یہ تو جی مسلمانوں کا اپنا ہی بندہ تھا، یہ تو احمدی تھا ہی نہیں، آپ اس بات کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ ایسا بتانا چاہیں گے؟ اگر آپ چاہیں تو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دیں یا وہ. نہیں سر، میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے تقریباً میں نے کوئی 350-400 لوگوں کو ای میل کی ہے، جس میں پاکستان کے کافی ڈپارٹمنٹ اس میں موجود تھے. اب میں
इसको और मतलब एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं अब पूरी दुनिया में मैं भेजूंगा। चूँकि बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है जो हमारे साथ बड़ी जमात में ज्यादती की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जाती है, और ये मतलब एक तरफा इन्होंने ट्रैफिक चलाई हुई है, एक निज़ाम एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है ह्यूमन जिसने राइट्स बहुत ऑर्गेनाइजेशन को यानी आप भेज रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे को भेजा था सर, जो भी मिले थे मैंने सब डिपार्टमेंट्स को भेजा था। अब मसूद साहब, अगर मैं फारूक भाई इजाजत दें, देखें मसूद साहब, बात ये है कि ये आपका ना इंटरनल मसला है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती अहमदियों को, भाई आप लानत भेजे जमात के निज़ाम को, आप बाहर निकले, मुसलमान जो हैं वो आप इस्लाम में आए, सीधा सीधा लानत भेजे। आप क्यों आप जमात अहमदिया में रहना चाहते हैं? आपको पता चल गया है जमात का सिस्टम के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आपको शिकायत करने की जरूरत है। फारूक भाई, एक बात मैंने ये करनी थी, जो अभी आमिर भाई की मैंने बड़ी तफसीली बात सुनी है, तो मुझे ना अचानक से वो याद आ गया कि एक कॉल में ये कहा गया था लोग 4 दिन बातें करेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है, हाँ तो जी, ये लोग भी, हाँ हाँ जी, वो मैंने कमेंट में भी किया था चैट में। तो बात ये है कि ये जिस बंदे ने बात की थी, आपको पता ही है, मिर्जा मसरूर साहब ने निदा की ऑडियो में बात की थी, और बात ये है कि 4 दिन क्या, ये मीडिया पे आ गई है बात, वंस इट इज पब्लिक इट इज पब्लिक। तो अब 4 दिन नहीं बात करेंगे, वो तो बात करते रहेंगे। ये वो वक्त नहीं है, वो दौर नहीं है कि कागजों में लिखा गया था तो चलो लोगों ने देखा, सुनना, पढ़ा, भूल गए। लेकिन अब ये जो चीज है ना, ये पब्लिक हो चुकी है, आपकी वॉइस रजिस्टर हो गई हुई है, और लोग 4 दिन बात नहीं करेंगे। और इसी तरह से ये जो आमिर भाई ने भी बात कही है, ये भी लोग 4 दिन बात नहीं करेंगे। ये तो बात अब रिकॉर्ड में आ गई है। मैं बस इतना ही ऐड करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो एक्शन साहब है ना, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी आवाज़ ज़रूर टिकटॉक पर चाहूँगा शेयर करना। अगर इनके पास टिकटॉक अकाउंट हो तो मेरा नंबर लेना चाहें तो ले लें, वहाँ हम इनकी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बात तो अगरचे जिस तरह ये आसिफ साहब कह रहे हैं कि है तो आसान सी सीधी सी कि लोग छोड़ दें, लेकिन इतनी सीधी भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप भी वहाँ रहे हैं, ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो दिली तौर पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन इस आग के दरिया से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं है। बहुत सारी वहाँ पर मुआशरती मजबूरियाँ हैं, लोग फंसे हुए हैं। मेरा ज़ाती आपके इस यानी फैसले से अगर आप यानी समझे कि इख्तलाफ में कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा ऐसे बंदे की मदद करना और उनकी आवाज़ बनना। टिकटॉक पर हमारा है, टीम है, हम वहाँ पर लोगों को अवेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो आप नंबर मेरा ले लें या ईमेल चाहें ले लें, मेरे से रब्ता कर लें। वहाँ इंशाल्लाह आपकी बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों जी को पता चले। जी एक्शन साहब क्या कहते हैं? मसूद भाई, हेलो भाईजान, माइक खुला है आपका, बोलें। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही जी है जी, सर? हाँ जी, आ रही। अच्छा, आ रही है, सही है, ठीक है। अच्छा सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि बात चीज़ें बहुत सिंपल नहीं होती है, बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन करना बात चीज़ों का। बहरहाल क्योंकि हमारी बड़ी वाबस्तगी थी जमात के साथ, हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जिस तरह से ये जमात पकड़ के हमें रोंदेगी। तो बहरहाल सर जी, मेरा एक बड़ा एक सीरियस और बड़ा जेन्युइन ये केस है। ये आज से पहले कभी भी इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं हुई मीडिया के ऊपर, ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ें आएंगी। तो बहरहाल अब अगर आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो मैं अभी नंबर यहाँ पे मैं शेयर सर कर आप दूंगा। अपना नंबर पब्लिकली आप अपना नंबर नहीं देंगे, आपको अमन नज़ीर साहब नीचे प्राइवेट चैट में दे देते हैं, या मैंने आपको ओके, अभी शेख साहब का भी नंबर दिखाया है। आपने कभी शेख साहब से बात करने की कोशिश की है? शेख साहब के AK साथ शेख साहब, जी मेरी बात हुई आपके साथ। प्रोग्राम भी एक छोटा सा हुआ था कुछ, वो उन्होंने प्रोग्राम किया था। बहरहाल वो प्रोग्राम तो ओके, बेसिकली वो अगेंस्ट ही कर दिया था मेरे। जो उसमें मैं इश्यूज को हाईलाइट करना चाह रहा था, वो इशू हुआ ही नहीं है, वो किसी और तरफ ही चला गया था प्रोग्राम। तो अच्छा, बहरहाल ये, मुझे हाँ नहीं जी याद पड़ता कब आपसे बात हुई है। बहरहाल अगर ऐसा कुछ हुआ सर है। जी, अच्छा, मेरा फिर नाम मेरा एक सवाल है, मेरा जी जी आपसे एक सवाल है। जी जी, आपका नाम आ गया। अब मेरा ये सवाल है कि आपका जो भी इशू था, इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि जमात के अकायद के हवाले से भी आपका कोई इख्तलाफ है, या ये सिर्फ इंतजामी मसला है, कोई आपका मामला है, इट शुड बी हियर, पर्सनल इशू है? यस यस, नो इट शुड बी हियर एक्चुअली।
सॉरी ब्रदर, ये ब्रदर एक्चुअली असल में जा पे था। सॉरी ब्रदर, आपका दोबारा सवाल करोगे प्लीज? सॉरी, डू मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आपका जो कोई पर्सनल इशू है वो बात है तो उसको अलग तरीके से किया जा सकता है, या आपको अकायद के हवाले से भी जमात से कोई इख्तलाफ है? सर नहीं, मैं अकायद के बारे में मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। वो मतलब जमात सच्ची है रहना झूठी आप है अहमदी चाहते हैं, तो रहना नहीं नहीं आप सर, अहमदी ही चाहते हैं। नहीं सर जी, बात तो समझे ना। मतलब ऐसा अगर निज़ाम बना के लोगों को अगर आप प्रॉब्लम में डालेंगे तो ऐसे मजहब के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, ये तो मैं अलान करता हूँ। तो अगर ऐसा निज़ाम बना के एक तरफा आपने निज़ाम इंसाफ आपने चलाना है, एक वो तो तरफ करना आप लानत भेज रहे हैं सर जी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं जाना ही नहीं चाहता, रहना मैं फिर भी नहीं, अहमदी उनका चाहता हूँ। मतलब ये है कि कायद पर मैं बहस मुबहसा नहीं करना चाहता, सर गुफ्तगू जी, नहीं मैं करना कायद के ऊपर जाना नहीं चाह रहा हूँ। असल में यही तो मसला है, मेरे साथ सर बड़ी ज्यादती हो देखें, रही है दुनिया ना के तो जमात सारे ये मामले सर ज्यादती हो रही है, उसका भी आप बिल्कुल, आप आमिर नज़ीर भाई आपको मौका देंगे पूरा, उधर आप टिकटॉक पे करिएगा। मैं तो एक सिंपल चीज समझना चाह रहा हूँ कि देखें, ईमान भी तो कोई चीज है, मरना भी तो है ना हमने, दुनिया की परेशानियां तो खत्म हो जाएंगी। तो वो उस मामले के ऊपर आपने सोचा ही नहीं है कभी कि मिर्जा साहब को मान के बस ठीक है जी चली जा रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप में काफी हौसला हिम्मत है, अगर आप इतनी बात कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी जी जी हिम्मत जी करके इस चीज को भी सवाल कर सकते हैं कि जिन अकायद पे बचपन से जिए जा रहे हैं क्या वो सही है? सर मेरे पर अल आपकी आवाज कट जाती है बार बार, गुफ्तगू का रबत टूट रहा है। ठीक है प्यारे, मैं दोनों, मैं तो आमिर साहब और आसिफ नदीम साहब दोनों की बातों के साथ इत्तेफाक करता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं कहता हूँ आप इस तरफ भी गौर करें, और दूसरा अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो बिल्कुल जी बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, जी वो जी भी सर, आप वो उठाएं। आप सर प्राइवेट में ले लें, जी नंबर ले लें इनका। आज अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, अभी मौका मुनासिबत कुछ और चल रही है। कुछ मुख्तसर बात आज हमारे टॉपिक पे करना चाहते हैं, जरूर फरमाएं। उसके बाद मैं आमिर नज़ीर साहब प्राइवेट में आपको दे देते। There once was a tree, lovingly made to look real, yet looking real wasn't enough. It wanted to be real. One night it wondered, where are my roots? And an answer came. Your roots will grow within the hearts of those around you as you create. अच्छा, अपना नंबर और ईमेल लिखें जरा, आप नीचे ना अपना नंबर और ईमेल तो लिखें जरा प्राइवेट चैट में। ये अच्छा आया ये आ सर, गया आपका नंबर, ईमेल भी लिख दें जरा, ईमेल भी लिख दें। मैं ईमेल भी दिख रहा हूँ सर, ईमेल भी लिख दें। ईमेल भी ये आ गया आपको, ये देखें सर। बहुत बढ़िया हो गया, चले ठीक है जी, आपसे रब्ता किया जाएगा इंशाल्लाह। मौजू थैंक पे यू, आज थैंक यू आज वेरी के मच। मौजू पे कोई करेंगे बात अरे नहीं सर, या नहीं? मैं आपको बताया ना ओके, प्लीज, मतलब मैं मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं इसमें नहीं कोई डिस्कस इशू नहीं नहीं, करना कोई इशू नहीं, चाहता। ओके कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप तशरीफ रखें, आप सुनते रहें। हाँ जी दोस्तों, जी फारूक भाई, मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा आपकी करें इजाज़त करें से कि करें। ये जो एक्शन साहब हैं, मौजूद तो खैर हमारा वही है, तो एक्शन साहब का जो इशू है, अगर आप इनको किसी और वक्त में प्रोग्राम रख लें, क्योंकि इंतज़ामी वाले से जो कहते हैं ये बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो आज भी जमात अहमदिया के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनको अंदर रहते हुए भी डरते और ब्लैकमेलिंग की वजह से वो आवाज़ नहीं बुलंद करते। अगर इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रोग्राम किसी और वक्त में रख लें या टिकटॉक पे रख लें, तो ये होनी सर चाहिए, जी ज़रूर जरूर बात होनी चाहिए। जरूर करेंगे, मैंने उनको कह दिया जी आप रखें, देखेंगे मामला जेन्युइन हुआ तो उस पर जरूर बात करेंगे। असल में थोड़ी सी तहकीक भी जरूरी होती है ना, जी जी अब जी, क्रेडिबिलिटी नाम की भी इनकी कुछ चीज़ होती है। हम ऐसे ही अलाउ कर दें भाई कुछ भी बात कोई करके चला जाए, वो बाद में कहें जी बंदा ही नहीं था हमारा, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, ये तो आप लोग, तो फिर वो सारी चैनल की क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अब उनका नंबर आ गया है, आमिर नज़ीर भाई पूरा उनसे बात कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, इंशाल्लाह अगली बात हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। इनकी कोई कॉल ऑडियोज हैं जो कि वायरल हो रही हैं, तो उसी वजह से मैं समझ रहा था कि इनकी कुछ हैं चीजें ऐसी। चलें देखते हैं उसको, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, लो जी, वो जनाब स्टूडियो खाली करें, जगह बनाएं, मैंने आना है, बस जी ये जनाब मेरे भाइयों का बस यही होता है कि जज्बा चल दी गड्डी दे टायर थले सिर देना है ना, उसके लिए बहुत जज्बा होता है। अब मैंने कहा मैं पब्लिक लिंक दे के बैठा हूँ, जिसने जो बात करनी है आ जाओ भाई। हूँ एक बंदा नहीं क्लिक कर रहा, और जब मैं अपने गेस्टों को सीधा पदरा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है जी, बीच में कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, गलती कर बैठा हूँ लिंक पब्लिक दे के, कोई जनाब उधर पीछे अजीब ही सिस्टम लगा हुआ था, और अब खाली हो गया स्टेज, और अब मैं कह रहा हूँ आ जाएं, कोई नहीं। अच्छा, ये मसूद साहब ने जो नंबर दिया है, या तो नंबर गलत है या उस पर व्हाट्सएप नहीं है। मौजूद हैं आप एक्शन साहब इधर? नहीं, तशरीफ ले गए हैं वो। अच्छा, हो सकता है कॉल वाला ही हो, सिर्फ कॉल वाला ही नंबर हो। ये इस भी हो जाते हुए दौर में असर तो होना नहीं चाहिए ना। आमिर भाई, इसीलिए तो चलें। मैं थोड़ा सा कर रहा था कि जरा बात ना, इससे पहले कि वो कुछ भी जो भी बयान करना चाह रहे हैं, पहले हमें पता चल जाए कि उसमें कितना वजन है, क्या बात है ना। एम ही हम अपने चलिए अभी प्लेटफॉर्म थोड़ी से देर बात में फॉरवर्ड यूके से कर दें ट्राई और करवा लेते हैं,
कोई बात नहीं, यूके से ट्राई करवा लेंगे, वो साथी हैं, कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। और किसी दोस्त ने कोई बात करनी है उसके अंदर, मिर्जा भाई ने, आसिफ भाई ने, अबू बकर मीर भाई ने, करो जी तुसी करनी है ते वो काला वाले जो शीले मुजाहिद ते सारे ठंडे पै गए ने। अच्छा वो सुन रहे मैं हैं ना वो बैठ के। अच्छा मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, आमिर भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ये जो 600 यूरो वाला जो मामला है ना, क्योंकि ये मर्ज़ई अक्सर अपनी ब्रांडों में बैठ के ना ये बातें भी करते हैं कि देखो जी ये लालची है, वो पैसे चाहिए, ये है वो, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे वो मिर्जा साहब ने कुल्ला नूरी साहब के साथ मुनाजरा करते हुए ये कहा था ना, जहाँ जहाँ नबी लिखा हुआ है काटा हुआ मुहद्दिस ख्याल कर ले, अब वहां पे नबूवत के इनकार कर दिया और मुहद्दिस बन बैठे। फिर आगे चल के कहते हैं मुहद्दिस जो है वो भी एक तरह का नबी होता है और उसको भी नबी कहा जा सकता है। मतलब अपने उस एक सिस्टम को छोड़ा नहीं उन्होंने, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा पकड़ा उन्होंने है नबी को। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ये 600 यूरो वाला मामला है ना, ये माफी का कायम मुकाम है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना हमारे पास कि जी हमने ये मामले में इनको इनकी पकड़ की है। तो अगर आप, क्योंकि बंदे की होती है कि जी अना होती है या कोई इज्जत का मसला होता है कि छोटा पड़ जाऊंगा मैं माफी मांगूंगा, इसलिए ये 600 यूरो कायम मुकाम है। अगर आपकी अना गुवारा नहीं करती माफी मांगना, अव्वल तो अना होनी नहीं चाहिए, झूठे बंदे की क्या अना होती है। तो जिस बंदे ने इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा भुगतान बांधा है, उसकी अना या उसकी इज्जत नफ्स क्या चीज है। तो फिर भी अगर वो माफी नहीं मांगना चाहता तो ये हमने कायम मुकाम रखा है 600 यूरो। जी ये बात सिर्फ इतनी सी मैंने ऐड करनी थी। जज़ाकल्लाह। मुझे मैं सारे मैसेजेस देख रहा हूँ इम्तियाज मेमन भाई, मेरे पास और तरफ भी से तो चीज़ें आ रही होती है ना, आप बेफिक्र रहे ना यार, साढ़े पे थोड़ा एतबार रखा करो जी, ड्राइविंग सीट पे भाया जी ना, थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करें। अच्छा हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, बिल्कुल ये पॉइंट मैं बीच में उठाने लगा था कि इसके ऊपर भी चूंकि यूट्यूब पे अभी हाईलाइट हुआ है मामला, तो ये भी उठेगा कि लो जी मौलवी पैसों के पीछे पड़ गए हैं, तो ये हो गया वो हो गया। वो जो पिछले दोनों पैसे आमिर साहब आप लोगों ने जीते हैं, ये बताएं ना पब्लिक को, उनका किया क्या है जनाब, कौन सी आपने जदाते बनाई हैं उससे, किधर किते जी? हाँ जी, हाँ ये जो बात आपने की है बड़ी अहम है। हमने जनाब उधर ही लगाया जिधर हमारे असलाफ ने लगाया था। हमारे असलाफ ने भी जब 300 रुपया इनसे लुधियाना में मुंशी कासिम से लिया था आखिरी फैसला इश्तिहार पर, मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को आखिरी फैसले के तौर पर एक इश्तिहार छापा था कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ अब ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि काफी मिर्जा साहब सच पटाए हुए थे और कह रहे थे कि इस बंदे ने मुझे दूर दराज के मुल्कों में मुफसद और ठग और दुकानदार मशहूर कर दिया है। लोग मेरे पास आते हैं तो रास्ते में रुक जाते हैं, वो कहते हैं पता चलता है कि किसी ने प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ कर दिया और लोगों को बिदका दिया मुझसे, मेरे करीब नहीं आते। अब इसके साथ आखिरी फैसला है कि या अल्लाह अगर ये झूठा है इसे मेरी जिंदगी में मार दे, अगर मैं झूठा मुझे इसकी जिंदगी में मार दे, या अल्लाह मेरा और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का फैसला कर। ये था वो इश्तिहार और उसका खुलासा, यानी ये इश्तिहार 15 अप्रैल 1907 को छपा। तो इस पर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहीं अपने रिसाला अल हदीस अमृतसर में लिख दिया कि मिर्जा साहब ने ये खुदा से वही पाकर लिखा था, और जब इश्तिहार छाप दिया था तो फिर अल्लाह ने इनको इल्हाम भी किया था कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। जो दुआ आपने मांगी है कि हम दोनों में से जो झूठा है या अल्लाह उसको सच्चे की जिंदगी में मार दे, दुआ कबूल हो गई है। वो अब दुआ के मुताबिक मिर्जा साहब 13 महीने बाद फोत हो गए और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो 1948 में फोत हुए हैं, मिर्जा साहब के 40 साल बाद तक जिंदा रहे। तो बहरहाल वो एक मुंशी कासिम था अल हक का एडिटर, उसने कहा नहीं नहीं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो तुमने बात कही है ये साबित कर दो, तो ये 300 यूरो, जिस तरह मैंने 500 लहरा के कहा था ना, मुंशी कासिम ने कहा ये 300 यूरो तुम्हें इनाम, तो सॉरी मेरे मुंह से निकल जाता है यूरो, 300 रुपया। उस जमाने में हिंदुस्तान में 300 रुपया बड़ी रकम होती थी, 1912 की बात है। तो 1912 में मुंशी बच्चन सिंह, सॉरी एडवोकेट बच्चन सिंह जो था वो सालस मुकर्रर हुआ और मुंशी कासिम और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के दरमियान 1912 में ये मुनाजरा हुआ कि क्या ये इश्तिहार खुदा की तईद पर लिखा गया, और इश्तिहार छापने के बाद क्या मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा साहब की तहरीरों से ये साबित कर दिया कि हाँ ये मिर्जा साहब ने कहा है कि मुझे खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली है,
खुदा की तरफ से ही है ये जो कुछ मैंने लिखा है। और जब मैंने ये इश्तिहार लिख दिया तो मुझे इल्हाम हुआ है उजीब दावत अद्दा इज़ा दआन। तो वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जब सबूत पेश किए, ये तो नहीं ना, हमारे उलमा तो सबूत पेश करते थे, बहरहाल यही सबूत हम मांगते हैं, तो ये नजर ही नहीं आ रहे। वो सबूत पेश किया तो वो 300 रुपया उस जमाने में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इनसे जीता मुंशी कासिम से। लेकिन बताने में ये लगा था कि हमारे इस्लाफ की ये सुन्नत है कि वो 300 रुपया घर नहीं लेके गए, बच्चों के लिए गोश्त और फ्रूट नहीं लेके गए, रसाला छपवा दिया फाते कादियान, और उस रसाले को मुफ्त बांट दिया लोगों में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये शख्स अपनी दुआ के ऐन मुताबिक फोत हुआ है। जिस तरह अबू जहल ने बदर की लड़ाई के लिए मक्का से निकलते हुए खाना काबा की चौखट पकड़ के कहा था ना, या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ, अगर हम झूठे हैं तो आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आज हमें कत्ल करवा दे। लेकिन अगर उन्होंने बिला वजह हमारे ये रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, बेटा बाप के खिलाफ लड़ने जा रहा है, भाई भाई के खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो अगर उन्होंने ये बिला वजह दरारें डलवा दी हैं, आज उन्हें हमारे हाथों कत्ल करवा दे। दुआ करके निकला खाने काबा की कुंडी पकड़ के, या अल्लाह आखिरी फैसला इख्तियार है मेरा, या अल्लाह आखिरी फैसला है, कर दे आज फैसला। उसी दिन फैसला हो गया। सूरा अनफाल में इसका जिक्र मौजूद है कि आपने इस्तफ्ता किया था ना कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है उसे सच्चे की जिंदगी में मार दे, यानी आज कत्ल करवा दे। तो ये लो, ये आ गया फतवा, अल्लाह ताला ने कहा ये रहा हमारा जवाब। उसी दिन अबू जहल को कत्ल करवा दिया। ऐसे ही मिर्जा साहब ने कहा था कि या अल्लाह ये आखिरी फैसला है, या अल्लाह हमारा फैसला कर दे, अगर मैं झूठा हूं मुझे इसकी जिंदगी में मार दे, अगर ये झूठा है इसे मेरी जिंदगी में मार दे। 13 महीने तक ये इश्तिहार छापने के बाद 13 महीने तक मिर्जा साहब जिंदा रहे, और मिर्जाई मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मकान के साथ कान लगाकर सुनते रहे। उनके बाजू में दर्द हो गया ना, तो इन्होंने अमृतसर में बात मशहूर कर दी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को ताउन हो गया, मरने लगा। कान लगा लगा के मिर्जाई आके सुन रहे थे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी फोत होया कि नहीं, औरतों के रोने की आवाज आई कि नहीं, नहीं फोत हुए। 13 महीने इंतजार करते रहे, और मुरीद कहते थे मिर्जा साहब के अभी मरा मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, आज मरया कल मरया, ताउन फैली हुई थी पूरे पंजाब में। तो मिर्जा साहब ने वो गोली तो बड़ी लट पलट की फेंकी थी, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसे बचाए उसे कौन मार सकता है, और जिसे अल्लाह मारे उसे कौन बचा सकता है। 13 महीने मिर्जाइयों ने इंतजार किया आसमान की तरफ मुंह करके कि आसमान से अभी फैसला आया, अभी फैसला आया। 13 महीने के बाद 26 मई 1908 को फैसला आसमान से आया। मिर्जाइयों ने उस फैसले से मुंह फेर लिया और कहने लग पड़े ओ हो नहीं नहीं, मिर्जा साहब तो अपनी वसीयत लिख के मरे हैं, मिर्जा साहब तो सच्चे हैं। बदबख्त बेनसीब लोग, हालांकि वो वक्त था हर चीज छोड़ छाड़ के कहते बस फैसला हो गया। जब आपने खुद अल्लाह ताला को पुकार के कहा है या अल्लाह हमारा फैसला कर दो, फैसला हो गया, अब क्या करवाना है। अल्लाह ताला ने इन लोगों के हाथ में कोई दलील नहीं छोड़ी। फारूक साहब कल क़यामत के दिन इनके हाथ में कख नहीं होना। अल्लाह ताला ने ये सारी हुज्जतें दुनिया में इसलिए तमाम की हैं, कोई मिर्जाई कल क़यामत के दिन ये ना कह दे कि या अल्लाह मुझे फलां बात से गलती लग गई थी, फलां बात से मेरे दिल में ये दिमाग में गलतफहमी आ गई थी कि शायद मिर्जा साहब से हर बात में झूठे निकले। तो बहरहाल वो 300 रुपया जिस तरह उन्होंने हमारे असलाफ ने इनसे इस आखिरी फैसला इश्तिहार पर जीत कर फाते कादियां रसाला छुपाया था। Have you financed the car with Close Brothers Montenovo or Black Horse before January 2021? They could owe मिर्जाई देंगे, ये भी उधर ही जाकर लगेगा, मदरसे में लग जाएगा, या किसी गरीब को दे देंगे। हमारे ऊपर हराम है, छूना भी हराम है। 1 यूरो को भी वादा भी किया था पहले भी कि टच भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उसको इस्तेमाल तो क्या करना, उसको छू के भी नहीं देखेंगे। अल्लाह ने हमको गनी किया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। ये आपसे जीत कर तावान लोगों को दिखाना है कि ये कौम अल्लाह ताला ने इसको इबरत का नमूना बना दिया है, ये है वो कौम। बस उसके बाद ये पैसे किसी गरीब को दे देंगे, किसी मदरसे में दे देंगे। हम पर हराम है। जिस तरह पहले 300 यूरो और 1 लाख रुपया, इसी तरह ये 600 रुपया हम पर हराम है। हमें ना पैसों की जरूरत है ना लालच है। अल्लाह ने अपनी बारगाह रहमत से बहुत कुछ हमें दिया हुआ, हमें जरूरत नहीं है 300 की या 600 की। अगर कोई बंदा ये समझता है कि हम ये पैसों की वजह से कर रहे हैं तो वो अपनी इस्लाह कर ले, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। ये सिर्फ आपसे तावान लेकर, जिस तरह पहले सबक सिखाया है, ये सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए है। आप झूठे हैं,
दिन में 5-5 बार झूठ बोलते। आज एक टिकटॉक की लाइव ब्रॉड थी, वो 5 दफा मैंने उसको पकड़ा झूठ बोलते हुए। एक झूठ बोलता है, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं कहता ये जो तुम बात कर रहे हो इसका सबूत पेश कर, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे दे। उससे टलते हैं, दूसरा फिर 2 मिनट बाद झूठ बोलता है, उससे पकड़ा, तीसरा, चौथा, 5 झूठ मैंने कहा इस बंदे ने आज बोले हैं। तो ये सारा दिन झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया पर, सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठी तोहमतें लोगों पर लगाते हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये एक कल्ट है। ये मैं मानता हूँ कुछ लोग इसमें मजबूरन फंसे हुए हैं, लेकिन जिस तरह ये आसिफ नदीम साहब कह रहे थे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करें अल्लाह मदद करेगा, निकले इससे, कुछ नहीं होता है। तो मुश्किल मैं मानता हूँ, मुश्किलात तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। उठे, हिम्मत करें, निकले यहाँ से, कुछ नहीं होता। लोगों ने अकेले ही सफर किया है, यार अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है। हिम्मत करके खुलूस नीयत के साथ अल्लाह को पुकारें और अल्लाह को कहें या अल्लाह हमारी मदद कर, हम इस कुफर से निकलना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, निकल आते हैं। बड़े काफी लोग निकले हैं, मेरे ख्याल है ये आसिफ नदीम साहब भी वहीं से आए हैं, तो बहुत सारे लोग निकले हैं। आप भी हिम्मत करें, निकल आए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो हम बहरहाल पैसों के पुजारी नहीं है, पैसों के भूखे नहीं है, ना हमें इसे ये पैसे अपनी जात के लिए चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जी आमिर नज़ीर भाई जज़ाकल्लाह। इस्लामिक रियलिटी भाई आए हैं, इनसे जान लेते हैं ये कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। आमिर नज़ीर भाई ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू की है, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा फरमा रहे। और बिल्कुल ये कल्ट है, ठीक है, और कुछ लोग मजबूरी में फंसे हुए हैं, और इस कल्ट को इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि लोग मजबूरन अगर चाहे भी तो निकल नहीं पाते। लेकिन आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि उनको तवक्कल तो अल्लाह करना पड़ेगा इस कल्ट से निकलने के लिए। और बहुत सारे कादियानी हजरात दिल में ये रख कर, उनके दिल में है कि ये हम फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी चालबाजियों से, इनकी झूठ फरेबों से वो निकल नहीं पाते हैं बिल्कुल। और अगर वो निकलने की कोशिश करते हैं तो ये इज़हार आसानियाँ करते हैं, माली तौर पर, मतलब जज्बाती तौर पर, किसी भी तरह से ब्लैकमेलिंग जो है वो ये कल्ट करता है उनको, जिसकी वजह से वो खामोश होकर बैठे रहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। लें जी दोस्तों, अगर किसी ने अब कोई बात करनी है आखिरी तो कर लें, उसके बाद मैं स्ट्रीम को एंड करने लगा। खुद ही माइक खोल लें जिसका भी दिल करो। हाँ, 3 घंटे की पूरी हो गई है स्ट्रीम, तो सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए भी मेरे ख्याल है कि गुंजाइश होनी चाहिए कि वो इसको पूरी, असल तो मैसेज ही देना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पहुंच जाएगी। साथियों को चाहिए कि ये यहाँ से भी शेयर करें, और अगर चाहें इसका कुछ हिस्सा काट के तो वो अपने वीडियो वो जो यूट्यूब चैनल है उस पर या टिकटॉक पर लगाना चाहें, तो आई डोंट थिंक कि फारूक भाई को कोई इतराज होगा। आप लगाएंगे नहीं तो कोई मैंने खुद कह दिया है, मैंने तो इजाजत खुद दी है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, लोगों को इनकी असलियत का पता चले। जज़ाकल्लाह। भाई किसी ने बात करनी है तो कर ले। मेरे ख्याल है फारूक भाई ने खाना भी खाना था, शायद उनको मौका ही नहीं मिला रेस्ट करने का, 3 घंटे से ये बात चल रही थी। आसिफ नदीम साहब, आपने कोई बात करनी है? नहीं जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अच्छा हो गया। मतलब कि मौक़िफ़ आ गया सामने, और फिर ये वाली बात भी कि ज़ैतून एफएम कोई ऐसा तो चैनल है नहीं जिससे हम पैसे कमाना चाहते हो, तो जो मर्जी जहाँ से मर्जी काटे। लेकिन ये है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई करेगा तो फिर हम उसके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर आप ज़रूर शाया करें। हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। जी फारूक भाई। जी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई ये बताने का। ये सहूलत तो है भी सिर्फ अपनों के लिए ना, मैं दूसरों को थोड़ी दे रहा हूँ ये सहूलत। जी बिल्कुल।
हाँ, ये तो अपने भाइयों के लिए मैं कह रहा था कि अगर चाहें तो इस नहीं, वो पार्ट दूसरों को को तो मैंने कब से ही कह दिया हुआ है ना। जब इन्होंने मिर्जा मसरूर की फोटोज पे मुझे कॉपीराइट भेजे थे, मैंने तभी कह दिया था कि आइंदा एक सेकंड भी किसी ने मेरा चलाया ना, अब मुझे कहीं अदालत में केस करना पड़े जाके, मैंने तुम्हारा सत्यानाश फेर देना है। ये एक बेशर्मी की हद है। इस्लाम का 5वां खलीफा है तुम्हारे मुताबिक वो, और उसकी फोटो का इतना पर्दा है जनाब, इतना है कि जी वो खतून है भी, उसकी फोटो हमने लगा दी और तुम्हारे जनाब फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं हमारी। यूट्यूब को जाके कह रहे नहीं हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, ये जी डिलीट करवा दें। हद है यार बेशर्मी की। और दलाइल में इससे ज्यादा कमी का क्या बंदा सबूत रखे कि जब फरीके मुखालिफ यहाँ तक उतर आए कि जी फोटो क्यों लगाई थी थंबनेल पे, तो क्या लगाएं? माजरत के साथ गधे की फोटो लगा के मैं उस पर बात करूं यार? कमाल करते हो भाई। जिसकी बात है उसी की फोटो लगा के बात करनी है ना, उस पे भी एतराज है। और खुद ये रजी इतना बेशरम है, दिन रात जनाब मुसलमान उलमा की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट काट के क्लिपें चला रहा होता है। बहरहाल यार क्या इनका जिक्र करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। शेयर कीजिएगा इसको जितना हो सके, शेयर कीजिएगा, शॉर्ट्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपनों से कोई गिला नहीं है। फारूक बस भाई उस एक छोटी सी बात मैंने ऐड करनी थी, अगर आप इजाजत दें। आई ना एंड ते याद आई ना ਤੁਹਾਨੂੰ आओ जी। नहीं मैं वेट कर रहा था कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ बोलना है तो बोलो जी। नहीं मैं असल में साथ ड्राइव भी कर रहा था। अच्छा आमिर भाई ने जो एक पैगाम देना था, हमारे साथियों ने पैगाम देना था, मेरा ख्याल है वो तो बड़ा कोहेरेंटली और लाउडली हमारे मुसलमानों तक भी पहुंच गया है। आमिर भाई ने मुसलमानों को भी ये नसीहत का समझे आपके की है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब यहाँ पे मैं जो हमारे अहमदी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, उनको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग के इल्म में ये बात है कि आम तौर पे हमारा ज़ैतून एफएम का जो वतीरा रहा है वो यही है कि हम यहाँ पे आगही की बात करते हैं। हम आपके सामने असूली मौक़िफ़ और असूली बात जो है सिर्फ वो पेश करते हैं। आपके सर के ऊपर हम ना डंडा मारते हैं, ना गर्दन के ऊपर तलवार रखते हैं, फ़ैसला आपने खुद करना है। अब सारी बात खोल के हमने आपके सामने रख दी है। आप बराए मेहरबानी एक गुजारिश आपसे है, ये काम आप लाजमी करें कि आप भी जो आपके बड़े हैं ना, उनका जाके दरवाज़ा खटखटाएं, खासकर मीर लतीफ़ साहब का, और उनसे पूछें कि ये जमात अहमदिया, ये कल्ट जो है, ये इतने सालों से जो सिलसिला जारी रखे हुए है, आप इस सिलसिले से बाज क्यों नहीं आते? मुसलमान उलमा जो हैं और मुसलमानों के जो काबरीन हैं, उनके ऊपर आप इस किस्म के घनौने और भोंडे इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं, जिसकी वजह से हम आम अहमदी जो हैं उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। भाई वाज़ेह सी बात है, अगर तो आपके पास इस चीज़ का कोई सबूत है तो सबूत पेश करें और मिर्ज़ा साहब की जमात की और अपनी भी जान छुड़ाएं। अगर तो आपके पास सबूत नहीं है तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर माजरत करें और बात ख़त्म करें। बस इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें वो जो है बात को बढ़ाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आम अहमदियों से मेरी गुजारिश है कि आप सवाल किया करें बस। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। लें जी दोस्तों, आखिरी मरतबा जितने दोस्त कोई नए जुड़े हैं पैगाम चला देता हूँ जनाब, और फिर एंड करते हैं। अहमद ज़ियाद साहब का ये अकीदा है कि हज़रत मसीह को सलीब तो दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सलीब पर मरने नहीं दिया। ये बात डॉक्टर अहमद दीदात की साबित कर दें तो ये 500 यूरो आपका इनाम है। 100 ज्यादा देंगे, नहीं देंगे तो मैं 100 ज्यादा दे दूंगा। 600 यूरो वो देंगे। हाँ नहीं, मैं 100 ज्यादा दे दूंगा। दुनिया ये सुनेगी कि कौन झूठा है। 600 यूरो की शर्त लगाई एक कादियानी ने और इल्जाम लगाया शेख अहमद दीदात रहीमहुल्लाह के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़े मुनाज़िर इस्लाम हैं। फिर पूरी तरह से अपने उस इल्जाम को साबित करने में झूठा साबित हो गया। अब ना ये बंदा 600 यूरो दे रहा है, ना माफी मांग रहा है, ना सबूत दिखा रहा है। आज की हमारी ये लाइव स्ट्रीम तमाम सोशल मीडिया के चैंपियन कादियानी मुरब्बियों को एक चैलेंज है, सामने आओ और या तो सबूत दो, या 600 यूरो दो, या फिर भरी महफिल में पूरी दुनिया के सामने माफी मांगो कि आपने ये गलत हरकत की, झूठ बोला, गलत इल्जाम लगाया, वरना जिल्लत आपका मुकद्दर एक बार फिर से बनेगी, जिस तरह माजी में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का बनी। 125 साल के बाद मिर्जाई कल्ट उसी चीज़ के ऊपर कायम है जिसका दौरा मिर्जा साहब के वक्त में मिर्जा साहब ने शुरू किया था, जिसकी बुनियाद मिर्जा साहब ने रखी थी। आज भी